Hello everyone, this is our 8th video lecture. In this we are going to see the variation in value of g. Okay, so till now we have seen the change along the surface of earth. Okay, we have seen that on the equator the value of r will be large and on the pole the value of r will be small. That's why on the equator, as the value of r is more, the value of g will be less, and on the pole the value of r is small. That's why the value of g will be more. Okay, so this is the logic over here. Okay, now we will see in section b. So what it is saying, what will be the changes or variation in the value of g with height means from earth surface. Okay, so we'll read as we go above the earth surface. जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं, ओके, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5, विच इक्वेशन दिस वन, वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 विल बी इंक्रीज. अगर वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ आर इन द इक्वेशन 5 इंक्रीजेस, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज. मैंने आपको पहले भी समझाया, वॉट एवर द थिंग विच इज़ इन डिनोमिनेटर टू दिस वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. अगर ये इंक्रीज होता है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट, सेम. सो हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, द वैल्यू ऑफ आर विल बी मोर, राइट. सो दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीजेस. ओके, वी विल सी विथ वन एग्जांपल ओवर हियर. ओके, now let's suppose this is earth surface. Okay, this is earth surface. Okay, right, earth surface, and from here you can see, suppose the radius from the center of this, from center the radius is 6400 kilometers. Okay, this is the radius, okay, from the surface. Okay, now suppose one aeroplane is going on. Okay, now suppose one aeroplane is going on from the surface. We know, right, aeroplane. Now suppose there is one aeroplane. Okay, now suppose there is one aeroplane going on this height, okay, which is 10 kilometer, Now from center, what will be the sum of r? This r plus r means 6400 plus 10 will be 6410 kilometers. Is it change? Not that much, only by 10 kilometer. Okay, so for earth the gravitation is 9.77, right. It will not change that much with this value 10 centimeter, but it will change if we go up and up. Now suppose this is the earth. Okay, now suppose this is the earth. We know this is surface, this is the center, this is the radius, right. Now suppose one artificial satellite is revolving, right, but it has some radius, okay, something more than in thousands of kilometers, right, and it is revolving around the earth. Okay, so this will get added and the value of g will get decreases. Okay, so this is what he is saying. If we go above the earth, okay, the height will increase. Okay, the height will increase, so the r will increase. Okay, r बढ़ जाएगा, और अगर r बढ़ता है then the value of g will decrease. यही है, जैसा हम ऊपर जाएंगे इस अर्थ सरफेस से, द हाइट विल गेट इंक्रीज. ओके, यहाँ पे एरोप्लेन लिया तो 10 किलोमीटर का था, लेकिन अगर हम सैटेलाइट लेके तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का फर्क आता है, राइट. सो 6000, सपोज 1000 किलोमीटर इज देयर. ओके, तो 1000 किलोमीटर प्लस 6400 kilometers will be 7400 kilometers, and it will be a big change. Okay, so this is the logic. Okay, so if you go above the earth surface, the height will increase, so the r will increase, that's why the g will decrease. Okay, now we will see
we will see some of the heights. Okay, we will see some of the heights on which there is a difference. Okay, as you can see over here is surface of earth height will be 0, we know, right? And g will be 9.8. Mount Everest is 8.8 kilometer only, that's why it has a meter per second is 9.8. It doesn't change that much. Maximum height reached by man-made balloon is 36.6. okay, height is increased, so some is the value is g is getting decreased by 0.3%, 0.03%. okay, now here we can see height of a typical weather satellite is 400 kilometers. अब हम अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर दूर गए तो देखो यहाँ पे एकदम से g की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई. तो यहाँ पे यही बोलना है, अगर हम उससे भी ज़्यादा जाते हैं 35,700 किलोमीटर पे जाएंगे तो g की वैल्यू देखो एकदम से कम हो गई है. तो इसका बोलना यही है, एज द हाइट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीजेज, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दिस इज वॉट इट इज सेइंग. सो विद द हाइट द वैल्यू ऑफ g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, जितना हाइट बढ़ाओगे उतना वो कम होते जाएगा. ठीक है, नाउ सी चेंज विद डेप्थ. अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या वेरिएशन आ सकते हैं इसके अंदर डेप्थ में. डेप्थ में मतलब अगर हम अर्थ के अंदर जाए, मतलब सेंटर की तरफ जाए, तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं यहाँ पे देखते हैं. द वैल्यू ऑफ जी आल्सो चेंजेस इफ़ यू गो इनसाइड द अर्थ. इसका बोलना है द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस, जी का वैल्यू चेंज होता है जब हम अर्थ के इनसाइड जाते हैं, जब हम डिग करते हैं अर्थ के इनसाइड. द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 जो हमने देखा था डिक्रीजेस. जैसा हमने देखा है कि अगर हम अर्थ के ऊपर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा, राइट, आर का. अगर हम अर्थ के नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा आर का. सो अब मैं बोलता हूँ, अब मैंने पहले इसमें बोला था कि अगर आर का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो जी का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए, राइट. इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज गेटिंग डिक्रीज द जी शुड बी इंक्रीज, बट नॉट इन दिस केस. जी विल नॉट गेट इंक्रीज बिकॉज we are also removing some mass. We will see with some example. Okay, over here see, this is the earth. Now what we are telling that this is the center. If from this side, if we go inside, right, so suppose this total distance is 6,400 किलोमीटर. ओके, now हमने क्या गड्ढा करते हम इतने अंदर आ गए. अब हमने अर्थ को छोटा कर दिया, ठीक है. 6,400 था, 5,400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लेके आ गए, यहाँ तक हमने गड्ढा कर दिया. ओके, अब ये डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर मैं डिस्टेंस कम करता हूँ, इफ़ आई डिक्रीज द डिस्टेंस, जी विल इंक्रीज, राइट, जी विल इंक्रीज, यस और नो. या एज आई सेड इन प्रीवियस एग्जाम्पल, बट हियर दिस मास इज आल्सो गेट रिमूव्ड. दिस इज मास, राइट. हम जब वो खोदते जाएंगे अंदर, हम डीक करेंगे तो मास भी रिमूव हो रहा है, तो मास भी डिक्रीज हो रहा है. अगर मास डिक्रीज होता है तो जी भी डिक्रीज होता है. इसमें सिर्फ अकेला आर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, आर के साथ एम भी डिक्रीज हो रहा है. और अगर एम डिक्रीज होता है तो ये फार्मूले का हिसाब से आर स्क्वायर, अगर ये भी डिक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी से, राइट. सो इफ एम इज डिक्रीजिंग, जी ऑल्सो डिक्रीजिंग. That's why while going inside the earth or in the depth, the value of g will be decreases. क्या होता है, the value of decreases as we go deep inside the earth. ये वाला है. तो हमने 3 देखा, हमने सरफेस देखा, वहाँ पे इक्वेटर पोल देखा. ऐसा याद रखना है आपको. whenever you want to remember something, you have to remember the points. in the surface section we have seen equator and pole, right. पोल पे ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, जी ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, राइट. हाइट, जैसा हम ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ेगी, राइट, आर बढ़ेगा तो जी डिक्रीज होगा. ओके, इन चेंज विद डेप्थ, अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो आर तो कम होता है, जिसकी वजह से जी बढ़ना चाहिए. लेकिन इफ़ यू गो इनसाइड एम ऑल्सो गेट डिक्रीज, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, राइट. हम अगर अंदर जाए तो पूरा मास रिमूव हो जाएगा, और अगर पूरा मास रिमूव हो जाएगा तो
m का मास रिमूव, m डिक्रीज हो जाएगा तो g भी डिक्रीज होगा, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर इट लाइक दिस. ओके, नाउ विल सी द सम क्वेश्चंस. ओके, will the direction of gravitational force changes as we go inside the earth? No. The answer is no, because as we know the gravitational force acts towards the center of earth. Okay, जब तक हम सेंटर की तरफ नहीं जाते तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ ही रहेगा, तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा. तो इसका आंसर है सिंपली नो, डायरेक्शन विल नॉट चेंज बिकॉज इट एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ. सेकंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ अर्थ? This is tough question, right? What will be the value of g at the center of earth? The value of g at the center of earth is 0. Why? Why 0? Because if we go in at the center of earth, we have seen the concept of center of mass. Okay, अगर ये सेंटर है अर्थ का तो पूरा मास यहाँ पे सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मतलब सारे जगह पे रिजल्टेंट फोर्स आएंगे. ओके, तो यहाँ पे सारे जगह से फोर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद वो ज़ीरो हो जाते हैं. ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0. क्या है? 0. इसका आंसर है 0. ओके, और इसका आंसर है नो. ठीक है, ओके. सो हम देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज़ डिफरेंट मास एंड रेडियस. वी नो, राइट? हर एक प्लैनेट का व सैटेलाइट का मास, वस्तुमान एंड रेडियस, त्रिज्या इज डिफरेंट. ओके, हेंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 6 देखा है ये वाला. ओके, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 6 the value of g on their surfaces are different. Okay, we know this, right? surface पे उसका value different होता है. on the moon it is about 1/6 of the value of the earth. अगर अर्थ पे वैल्यू कितना है 9.8, सो 9.8 डिवाइड बाई 6 उतना वहाँ पे g होगा, राइट? तो हमको यहाँ पे जितना फोर्स लगता है एक काम करने में, उतना फोर्स में मून पे 6 टाइम काम हो जाएगा, ऐसा उसका बोलना है, राइट? इसलिए मून पे हम सीधा चल नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है. ओके, दैट इज द रीज़न. नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. ओके, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट. वी ऑल डू सम मिस्टेक्स इन दिस. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस फिनोमेना वर्क्स. ओके, सो फर्स्ट इज मास. How? Okay, what is mass? Mass is the amount of matter present in the object. Object कुछ भी हो सकता है, right? So this is the definition of mass. Mass is the amount of matter present in the object. Okay, matter जिसमें सब कुछ आता है. ठीक है, matter मतलब जिससे सब जो हमारा सब केमिकल कंपोजिशन सब कुछ आ जाता है, राइट? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एप्पल, मैन, वुमेन, राइट? एवरीथिंग. तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम केजी बोलते हैं, राइट? कितना केजी हम जब घर से मम्मी बोलती है, राइट, टेक 1 kg ऑफ शुगर. ओके, तो 1 kg इज मास. कितना केजी का शुगर लाने को बोला है? 1 kg, राइट? So 1 kg is mass. Okay, the SI unit of mass is kg. Okay, so please remember this. Please write down this definition. Mass is the amount of matter present or stored in the object. Okay, the SI unit of mass is kg. We all know. Mass is a scalar quantity, right? Scalar हमको पता है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. मास कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते कि तेरा मास 64 kg है लेफ्ट साइड में, 64% है राइट साइड में, राइट? वी डोंट से लाइक दिस. ओके, सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. ओके, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर. मास का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा. दिस ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. द वैल्यू ऑफ मास इज सेम एवरीवेयर. आप चांद पे चले जाए, वी गो ऑन मून, मास अर्थ पे, तो जितना अर्थ पे आपका मास है उतना आपका मास चांद पे मून पे भी रहेगा. ओके, एंड इट विल बी सेम ऑन मार्स ऑल्सो. एवरीवेयर इन द यूनिवर्स योर मास विल बी सेम. ओके, बट देन व्हाई वी फील लाइट इन द on a different planet? Okay,
हमारा वेट कम क्यों लगता है? हमारा वेट कम लगता है, जो हम देखने वाले हैं, हमारा मास कम नहीं लगता, ठीक है। तो जब भी आपको कोई आपका वेट पूछे, दैट इज, सो यू आर टेलिंग द रॉन्ग वेट, यू हैव टू टेल द मास, यू डोंट हैव टू टेल द वेट, ओके। तो जब इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू अनदर प्लैनेट, ओके, जैसा मैंने अभी बोला, राइट, उसका मास का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम दूसरे प्लैनेट पे भी जाएंगे तो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हायर द मास हायर द इनर्शिया। जैसा हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद है, व्हाट वी हैव सीन, वी हैड सीन देयर लाइक ज़्यादा मास रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, राइट, और कम मास लगेगा तो कम मास रहेगा तो कम फोर्स लगेगा। इट इज़ लाइक सेम, हायर द मास हायर द इनर्शिया, लोअर द मास लोअर द इनर्शिया, राइट। So this is mass. Mass unit is kg. Okay. Now definition is mass is the amount of matter present in the object. Now हम देखते हैं weight. अब weight किसको बोलते हैं? जो आपको पूछता है कोई भी, जो आप बताते हो, that is wrong. weight का यूनिट kg नहीं है, weight का यूनिट न्यूटन है, okay. weight is a force. weight is a force due to acceleration of gravity. okay, सॉरी, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं अर्थ पे, वो एक वेट है, राइट। तो वेट हम देखते हैं उसका फॉर्मूला, उसको क्या बोलते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स, देखो मैंने बोला था वेट इज अ फोर्स, एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ओके। सो जो वेट है वो एक फोर्स है जिससे अर्थ हमको खींचती है, राइट, ऑब्जेक्ट को खींचती है, राइट। सो अर्थ एक फोर्स है। द फोर्स एफ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ऑन द अर्थ सरफेस कैन बी रिटर्न यूजिंग वेट इज इक्वल टू एफ एम जी। तो वेट का भी फॉर्मूला क्या होता है, वेट का भी फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेंगे। वेट इज इक्वल टू एफ, फोर्स होता है, राइट, और फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी, ओके। वेट का भी फॉर्मूला है, यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, एन, ठीक है। तो जब भी आपको कोई आपका वेट पूछता है तो आपके मास को मल्टीप्लाई बाय योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बताना है। तो आप जब आपको कोई पूछता है व्हाट इज योर वेट, व्हाट डू यू टेल, माय वेट इज 50 kg। एक्चुअली यू आर टेलिंग योर मास, यू हैव टू टेल योर वेट। वेट विल बी मास 50 kg इंटू 9.8, ये आपका वेट रहेगा, दैट मीन्स नियर अबाउट 500 न्यूटन, ओके। तो आपको कभी भी कोई वेट पूछे तो न्यूटन में बताना है, ना कि केजी में, ओके। केजी इज द यूनिट ऑफ मास, नॉट ऑफ वेट्स, ओके। सो यू आर टेलिंग wrong unit till now, okay. So whenever somebody is asking your weight, you have to tell him multiplied by your acceleration due to gravity, okay. So that is wrong, okay. So mass is different, weight is different, mass is same everywhere, okay. weight is different। अभी देखो, अगर आप अभी मून पे जाओगे, यहाँ पे देखो इस सेक्शन में, अगर आप अभी मून पे जाओगे, मैं बोल रहा हूँ मून पे आपका मास 50 kg ही रहेगा, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी है वो 1 टाइम 1.6 9.8 है, मतलब नियर अबाउट वहाँ की ग्रेविटी कितनी रहेगी, आप पकड़ लो, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, राइट। सो 50, देखो कितना वेट कम हो जाता है। जैसे अब हर एक प्लैनेट की ग्रेविटी अलग अलग होगी, राइट। तो ग्रेविटी चेंज हो रहा है, जी चेंज होगा मतलब आपका वेट चेंज होगा। तो एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, राइट। और हियर इज मास इज सेम, वेट इज डिफरेंट ऑन ईच एंड एवरी प्लैनेट, एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ऑल्सो वेट इज डिफरेंट, बिकॉज जी, इफ जी इज चेंजिंग, वेट इज चेंजिंग, ओके। सिंपल लॉ, ओके, सेम। weight being force, its SI unit is Newton, okay, we have seen. Also the weight being a force is a vector quantity, means it has both magnitude and direction, okay. its direction is towards the center of earth, okay, its direction is towards the center of earth, क्योंकि अर्थ हमको खींचती है, खींचते हैं मतलब टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट्स वाई वेट का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। एज द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, जो हमने बताया जी का वैल्यू हर जगह पे सेम नहीं होता, दैट्स वाई द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ओके, दो इट्स मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर।
द वेट का वैल्यू हर जगह पे चेंज होगा। जो मैंने अभी बताया था वो यही कंसेप्ट है, प्लीज़ रीड दिस कंसेप्ट। ओके, सो वेन एवर समबडी इज आस्किंग योर वेट, यू हैव टू टेल him in a Newton, okay, and whenever somebody is asking you your mass, you have to tell them in a kg, okay, that is the difference. Now we will see some questions over here. Okay, will your weight remain constant as you go above the surface of earth? We have seen, right, it will not बी अ सेम। सो द आंसर इज नो, बिकॉज हम सरफेस के ऊपर जाएंगे तो हमारा हाइट चेंज होगा, राइट, हाइट चेंज होगा तो हमारा जी चेंज होगा, जी चेंज होगा तो वेट चेंज हो गया, सिंपली, राइट। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमारा जी कम होगा, राइट, हमारा जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है वो कम रहेगा। अगर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कम है तो वेट कम होगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू m into g, g is decrease, weight is decrease, because g is directly proportional to weight. Okay, now second question, suppose you are standing on a tall ladder, okay, अर्थ के ऊपर से एक लैडर लगा दिया ऊपर, लाइक लैडर मीन्स सीढ़ी, राइट, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज ट्वाइस आर, जो हमारा d होता है फॉर्मूला में, f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर या d स्क्वेयर, वो जो r है वो ट्वाइस r है, अभी कितना है, ट्वाइस r, मतलब अर्थ के 2 गुना हम डिस्टेंस हो गया। व्हाट विल बी योर वेट, अब हमको क्या है, वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे वेट इज इक्वल टू फोर्स, राइट, जैसा हमने देखा वेट इज इक्वल टू फोर्स। ओके, हम इसको सॉरी यहाँ पे हम W लिख सकते हैं, राइट, W। ओके, हमने देखा कि वेट इज इक्वल टू फोर्स, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको क्या है, फोर्स निकालना है, राइट। अब आप बोलोगे कि आपने अभी फॉर्मूला ये लिखा था W इज इक्वल टू एम जी, बट यहाँ पे G का वैल्यू क्या होता है, G का वैल्यू यही होता है, G इज इक्वल टू एम इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट, दिस इज नथिंग बट द सेम, राइट, दिस फॉर्मूला इज सेम। ओके, G का वैल्यू यही होता है, राइट। तो अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इज ट्वाइस R, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज ट्वाइस R, कितना ले रहे हैं, ट्वाइस R। अब इसका क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ट्वाइस R हो गया, तो हम यहाँ पे ट्वाइस R कर देंगे, जी एम एम जैसा का वैसा रहेगा, राइट, हियर 4 mm सॉरी जी एम एम अपॉन 2 स्क्वेयर का कितना हो जाएगा, 4 R का स्क्वेयर R स्क्वेयर, हम 1 बाय इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, इट विल बी 1/4, सो वैल्यू कितना रहेगा, 1/4, 4 गुना कम, कितना, 4 गुना कम। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, therefore the weight will be 1/4 of the weight of the earth. ओके, ये वेट का ये अर्थ का वेट है, राइट, मतलब अर्थ का मतलब वेट ऑन द अर्थ, सॉरी वेट ऑन द अर्थ, ये हमारा वेट है ऑन द अर्थ, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इसका R का वैल्यू ट्वाइस कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियस है, मैंने जैसा बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल W क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कम होगा, 1/4, 1/4। सो ये इसका न्यूमेरिकल, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, ओके, ठीक है। नाउ वी विल सी वन नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ओके, इट्स रियली इंटरेस्टिंग वन। ओके, सो व्हाट इज सेइंग, इफ अ पर्सन वेट्स 750 न्यूटन ऑन अर्थ, उसका वेट कितना है, 750 न्यूटन ऑन अर्थ, अर्थ पे उसका वेट है 750 न्यूटन, हाउ मच वुड ही वेट, वुड बी हिज वेट ऑन द मून, गिवन दैट उसका मून पे कितना वेट रहेगा, गिवन दैट मून्स मास इज 1/81 ऑफ दैट अर्थ, मतलब मून का जो मास है वो अर्थ के मास का डिवाइड बाय 81 है, राइट, एंड इट्स रेडियस इज स्मॉल बाय 1.37, ओके, 1/3.7, ओके, उसका अर्थ इतना कम है। तो अब हम उसको देखिए कैसा करेंगे, अब हमको इसमें क्या निकालना है, अगर एक पर्सन का वेट 750 न्यूटन है ऑन अर्थ, तो उसका वेट मून पे कितना होगा, जैसा हमने बोला है कि वेट चेंज होता है, राइट, अगर इसका वेट 750 है ऑन अर्थ, तो उसका वेट वहाँ पे हम
कम होगा, कितना मून पे कम होगा, और वो 6 बार 6 बाई डिवाइड बाई 6 से कम होगा नियर अबाउट, ओके, क्योंकि उसको वहाँ की ग्रेविटी कम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसा करेंगे इसको, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं राइट, यहाँ पे हम देखेंगे वेट ऑफ द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ इज 750 न्यूटन, हमने लिख दिया, गिवन क्या है अपने को, वेट ऑन द अर्थ इज 750 न्यूटन, ओके। रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हम कैसा डिनोट कर रहे हैं, एम, और सफिक्स में हम यहाँ पे ई लिख रहे हैं राइट, टू मास ऑफ मून, सफिक्स में क्या लिख रहे हैं, एम बाय एम, राइट, एम एम, ओके। नाउ हम क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/81 मास ऑफ अर्थ, ओके। सो हाँ कैसा हो जाएगा, 81 इधर डिनोमिनेटर में तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 81 इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, एम ई अपॉन एम एम, ओके। सो एम ई अपॉन एम एम कितना हो जाएगा, 81, ओके। तो यही आपके यहाँ पे ये 81 ऐसा आया राइट, यह ये स्टेप करने के बाद, ठीक है। अब ये देखेंगे राइट, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ टू द रेडियस ऑफ मून, आर एम, ओके। तो क्या बोलता है, आर एम रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/3.72 आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम क्या करेंगे, सेम जो ऊपर किया था 3.7 को इधर लेके जाएंगे, आर एम को नीचे लेके आएंगे राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 3.7 इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर एम, तो ये लेफ्ट साइड, राइट साइड का लेफ्ट साइड ले जाएगा राइट, इट विल बी आर ई अपॉन आर एम इज इक्वल टू 3.7। तो रेशियो क्या आ गया दोनों का, एम ई अपॉन एम एम 81, आर ई अपॉन आर एम 3.7, ओके। लेट द मास ऑफ पर्सन बी एम के जी, अब हमने पर्सन के मास को क्या समझा है, सपोज अभी उसका मास हमको पता नहीं है राइट, मून का, तो अभी मून पे पर्सन का क्या, नहीं मून पे नहीं, अर्थ और मून पे दोनों पे उसका मास पता नहीं है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, उसका मास सपोज क्या है, एम है। अगर उसका मास अर्थ पे 50 kg है तो वहाँ पे भी 50 kg ही रहेगा, तो इसलिए हमने उसको एम, ये चेंज नहीं होगा राइट, ये अर्थ पे भी एम ही रहेगा, मून पे भी एम ही रहेगा, जैसा हमने पहले देखा राइट, मास इज सेम एवरीवेयर, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, weight on the earth is equal to mg, right, we all know what is the weight on earth, we have seen 750 newton, right, so we have written it down over here, 750 is equal to mg। अब हमको g का वैल्यू पता है राइट, g का वैल्यू क्या होता है, g m e, कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वेयर, राइट, अर्थ का लिख रहे हैं इसलिए r e m e आएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g, नेक्स्ट में देखते हैं राइट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ g। अभी देखते हैं हमने क्या किया, g का वैल्यू पुट किया, क्या आया यहाँ पे, g को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, m इंटू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वेयर, ओके। ये कैसा आया, आप बोलोगे g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर होता है राइट, तो अर्थ के लिए हमने एम ई आर ई लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको m का वैल्यू चाहिए राइट, हमको मास पता है क्या, नहीं, तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, वी विल टेक दिस आर ई स्क्वेयर हियर एंड जी एम ई अपॉन, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में तो ये कैसा हो जाएगा, रीअरेंज, m इज इक्वल टू 750 इंटू आर ई स्क्वेयर अपॉन, ये नीचे चला जाएगा, जी एम ई, ठीक है। हमने इसको चेंज कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर में अब ये हमको ऐसा, इसको ऐसा ही रहने देंगे राइट, वी विल कीप इट एज इट इज, ओके। नाउ वेट ऑन द मून, जो हमको निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑन मून। सो व्हाट इज द वेट ऑन मून, m इंटू जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वेयर। ये फॉर्मूला कौन सा है अपना, m इंटू जी का फॉर्मूला। अब यहाँ हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या ले लिया, g ले लिया मून का, जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वेयर, ओके। नाउ मास इज सिमिलर एवरीवेयर, वी हैव सीन राइट, देयरफॉर putting the value of equation 1 in equation 2, okay। so ये जो m है, इस m का वैल्यू we have replaced by this whole value, okay। so I replace this m by 750 into r e square upon g m e, okay। ये पूरा m replace हो गया है g m m upon r m square as it is। now what we have done, this g and this g get cancelled because it is multiply and divide, okay। now remaining is 750, we have taken this re on one side, means taken common, means
equal and then mm upon me. Okay, now we know, right, re upon rm, what is the value? re upon rm हमने यहाँ पे निकाला था, राइट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ re upon rm? 3.7. me upon mm 81. ओके, re upon rm इज 3.7 होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखो ये उल्टा पूछा है, हमारे पास me अपॉन mm है 81, लेकिन हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये 81 की जगह कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1/81 हो जाएगा. इसलिए मैंने mm अपॉन me को क्या लिखा है? 1/81, राइट. क्योंकि हमारे पास me अपॉन mm है 81, हम इसको उल्टा कर देंगे तो me अपॉन mm अपॉन me 1/81. दैट्स वाई. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.7 का स्क्वायर होता है 13.69, हमने लिख दिया. सो 7 ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 750 इंटू 13.69 कितना होता है? 10267.5, और इसको डिवाइड कर देंगे 81 से तो 126.75, इसको राउंड अप कर देंगे तो 126.8 न्यूटन. सो उस पर्सन का, उस ऑब्जेक्ट का मास ऑन मून विल बी 126.8, जबकि उसका मास अर्थ पे कितना था? 750 न्यूटन. ओके, 750 न्यूटन. कितना कम हो गया? इतना, 126.8. देखो, अगर एक आदमी उसका वेट 750 न्यूटन है ऑन अर्थ, तो उसका वेट मून पे कितना कम हो जाएगा? देखो 126.8, इतना हल्का हो जाएगा वो, राइट. लेकिन उसका मास सेम रहेगा. मास मतलब उसका जो मैटर है वो 50 kg का रहेगा, तो 50 kg का ही रहेगा. ओके, so that's all for this video lecture. See you in next one. Thank you so much.